Hi. So in this session we are going to discuss about some typical problems of XOR, है ना? So we will learn a new technique. So let's consider one question. So you are given an array. You are given an array, something like this: 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5. Let's say this array is given. You need to give me maximum XOR pair possible. So pair means two elements. So if you take any two elements from this, and whoever XOR of those two elements is maximum, you need to return that XOR. So XOR of 2, 3 is something. XOR of 3, 7 is something. So whatever pairs are possible, and from those all pairs, I need to find out the maximum XOR possible. So that maximum XOR I need to give the answer. That will be my answer. You have to take only two pairs. You have to take a pair, and whichever pair will have the maximum XOR, that value you need to return to me. Okay, so that is the question. Now one simple approach will be try to see all the pairs. Like for this one, let's try out all the possible elements: 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 7, and take XOR, and let's maintain a maximum. And whoever comes out to be maximum of all those pairs will be the maximum value which we can get. है ना? सो 1 का सबके साथ करेंगे, 2 का सबके साथ करेंगे, 3 का सबके साथ करेंगे, एक एक करके देखते जाएंगे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम XOR होगा वो हमारी वैल्यू होगी. बट दैट वुड टेक n स्क्वायर अप्रोच, है ना? दैट विल बी n स्क्वायर. सो इससे ना एक बहुत बढ़िया तरीका है यूजिंग ट्राई, जो तुम्हारी ये जो आंसर है वो बहुत फटाफट निकाल देता है. रेदर देन n स्क्वायर, इट कंप्यूट्स लाइक n log ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट पॉसिबल. इट कंप्यूट्स इन दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो थोड़ा सा इंसर्शन थोड़ा सा गड़बड़ होता है. इंसर्शन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. वी विल मेंटेन ए डेटा स्ट्रक्चर ट्राई, एंड उसमें हम इंसर्ट भी करेंगे एंड उसमें फिर बाद में क्वेरी करेंगे, है ना? सो XOR वाली प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा ट्राई की टेक्निक काफी यूज हो पाती है ना? सो लेट्स थिंक XOR की वैल्यू क्या, XOR से हम कैसे क्या ट्राई के थ्रू हम क्या कहना चाह रहे हैं. सो वी आर कंसिडरिंग समथिंग लाइक दिस. Let us say we have a try maintained and we have inserted elements 2, 7. We have inserted these elements. Okay. Or let's consider 3, 7. So maximum possible bits are 3 in our case, because 7 is 1, 1, 1. Okay. So let's consider 3 bits only for now. So and 3 is 0, 1, 1. This is 3. Great. So let us say this is inserted into our try like this. So we have a try 0, 1, 0, 1, 1. Now 1 and this 1. This is our 1 value. This is 1. This is 1 and this is 1. These values are already inserted into the try. Our try has, every node has two children. Either it shift from 0 to 0 or either it shift from 1. So from either path you can go. If you have next value is 0, you would go like this. So you have a try maintained 0, 1, 1. You have a try maintained 1, 1, 1. Let's insert 2 into this. If I am inserting 2 element into this, first I will go and see the binary representation of 2, that is 0, 1, 0. So first time I need to go to 0. So I will go to 0. I will go to this path. Then since 1 is also already inserted, let's use this one. Okay, we don't need to insert any new node. We just need to use this one. Now what we will use is this 0. This 0 is not there. So we will insert this here 0 and we will insert this node. So this node will be inserted at this position. So जैसे जैसे एलिमेंट्स आ रहे होंगे वैसे वैसे इस ट्राई में इंसर्ट कर रहे होंगे. जो कॉरस्पॉन्डिंग नोड ऑलरेडी है उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसको हम नई नोड नहीं बनाएंगे. लेट अस कंसीडर 6. 6 is 1, 1, 0. So from the root node you will go 1. So that is already there. That is 1 already there. 0 is not there. So you will insert a new node to the left of this, है ना? यहाँ पर हम एक नई इंसर्ट नोड कर देंगे. तो इसमें इंसर्ट करने में मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? सो इंसर्ट करने में मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है? दिस. सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है ना हर एक नंबर की 1, 1, 1, 1, 1. दिस कैन बी फाउंड आउट बाय ये. इसकी अगर हमें हर एक बिट पे जाना है कितना टाइम लगता है उसमें? लॉग ऑफ n वैल्यू. अगर इसकी वैल्यू n है
तो log ऑफ n वैल्यू कर करके पहले इस बिट पे जाओगे, फिर इस बिट पे, फिर इस बिट पे, इस बिट पे, इस पे, तो डिवाइड बाय 2 कर करके निकाले जा रहे हो, तो दैट विल टेक अराउंड log n वैल्यू। सो हर एक बिट के लिए तुम ये ट्री पे ट्रेवर्स करते हो, तो ये ट्री की हाइट मैक्सिमम क्या हो सकती है, log ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी बड़ी ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, उतना बड़ा इस ट्री की हाइट हो सकती है। इफ यू आर इंसर्टिंग 1 1 1 1 1 1, so you will go 1 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 here, so that is the maximum height of the tree possible. so इंसर्शन करने में टाइम कितना लग सकता है मैक्सिमम, ओनली इंसर्शन की बात कर रहा हूं। कोई अगर n एलिमेंट है उसको मेरे को इंसर्ट करना है तो log ऑफ n टाइम लगेगा, एंड अगर बहुत सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो अगर n एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, n log ऑफ जो भी उनमें से कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एलिमेंट है जितने इंसर्ट करे हैं उतनी मुझे टाइम लग सकता है फॉर इंसर्शन, बट इंसर्शन करने में मैक्सिमम टाइम इतना ही लग सकता है। सिमिलरली फॉर क्वेरी, अगर मैं इसमें पूछूं तुमसे यार इस जो भी एरे में मैंने इंसर्ट करा है उसमें 3 है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेरी होती तो उसमें कितना टाइम लगता। 3 के लिए रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी पता है तुम्हें क्या होती है, दैट इज 0 1 1, तो यहां पर बोलते 0 है क्या है, 1 है क्या है, 1 है क्या है, तो यू विल नीड दिस नोड एंड यू विल से दैट 3 इज प्रेजेंट देयर। ओके, इस टाइप की क्वेरी हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं इसमें 5 पूछता हूं, 5 क्या होता है 1 0 1, तो यहां पर तो बोलते तुम 1 है, बट इसके बाद 0 पूछे तो 0 है ही नहीं, तो यू विल से दैट 5 इज नॉट प्रेजेंट देयर, है ना। सो यू हैव इंसर्टेड सम एलिमेंट्स एंड यू आर नाउ क्वेरिंग ऑन द एलिमेंट्स। सो अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में पहुंचना है तो मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, अगेन द हाइट ऑफ द ट्री, एंड अगेन द हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट, log ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, log ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सो ये इंसर्ट भी करने दे रहा है, क्वेरी भी करने दे रहा है इन log ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ZOR कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू ZOR की चेक करनी है कि किसके साथ है या नहीं। सो अगर मेरे को ये होता, मेरे को ये पूछना होता कि यार 7 का, अगर मान लो ये एलिमेंट्स मेरे इंसर्ट हो चुके हैं, मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर चुका हूं, बेसिकली 0 1 1 0 1 1, लेट्स मेंटेन अ न्यू ट्री। सो अगर मेरा कोई ट्री ऐसे हो चुका है, मान लो दिस इज 0 1 1 0 1 0, सो मेरे इंसर्ट हो चुके हैं बेसिकली 3 बिट तक ये वाले एलिमेंट्स। सो 1 0 0, लेट्स मेंटेन दिस 0, लेट्स मेंटेन दिस 1। ओके, सो मेरा हो चुका है 0 0 1, मेरा हो चुका है 0 1 0, मेरा हो चुका है 1 0 0। These all are the elements which are present in the trie. This is 1, this is 2, this is 4, यही सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर मुझे पूछना होता कि इन सारे एलिमेंट्स में से 7 का ZOR किसके साथ मैक्सिमम है, 7 का अगर मैं लूं, मैं पेयर निकाल रहा हूं, 7 के साथ में इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट लूं सच दैट मैक्सिमम पेयर बने मेरा। सो व्हाट यू कैन डू इज, तुम क्या कर सकते हो सिंपल सा, 7 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 1 1 1, दिस इज द 7। सो तुम्हें यहां पर ढूंढना है, देखो ZOR मैक्सिमम करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा यार, यहां पर अगर 1 है ना तो यहां पर 0 लेना चाहिए, जिससे कि मैं इसका ZOR लूं तो ये 1 बने, यहां पर अगर 1 है तो यहां पर 0 लेना चाहिए, तो बेसिकली तब भी इसका मैक्सिमम ZOR बनेगा। तो मेरे को यहां पर ये एलिमेंट बनाना है ना, एक एक करके एलिमेंट बनाना है, तो बेसिकली इस ट्री में ट्रेवर्स करना है बार बार। तो मेरे को पता है 7 की फर्स्ट बिट है, मतलब लास्ट बिट है 1, तो मेरे को यहाँ पर बेसिकली एक बात और कि लास्ट बिट से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पर 1 होता तो दिस हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2, है ना, ये 2 to the power 0 होता है, 2 to the power 1 होता है, ये 2 to the power 2 होता है, तो हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज करना होगा। अगर 7 के यहाँ पर 1 है तो मुझे यहाँ पर आई थिंक 0 लेना चाहिए, तो आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एलिमेंट टू दिस। मेरे को यहाँ पर पता लगा यार 7 का जो लास्ट बिट है ना उस पर 1 आता है, तो बेसिकली मैंने मूव कर गया इधर की साइड, बिकॉज मेरे को 0 लेना चाहिए अगर मुझे मैक्सिमम ZOR बनाना है 7 का किसी के साथ। ओके, 0 का एलिमेंट प्रेजेंट है, बिल्कुल ले लेंगे। अब नाउ मैंने इस 1 से पूछा यार इसका ये वाला बिट भी ना 1 है, तो मेरे को यहाँ पर भी 0 लेना चाहिए, मेरे को बेसिकली यहाँ पर भी 0 मूव करना चाहिए, तो मैं यहाँ की साइड 0 0 पे मूव कर गया। ग्रेट, अब यहाँ पर है बेसिकली 1 अगेन, अब ना 1 है, मुझे अगेन 0 देखना चाहिए, बट 0 तो अभी एलिमेंट है नहीं, बेसिकली वो ट्री में प्रेजेंट ही नहीं है, तो आई नीड टू टेक 1। मेरे पास एक ही पॉसिबल पाथ है 1, मैं यहां से लेकर यहां तक तो मैक्सिमाइज करके ले आया क्योंकि पाथ था मेरे पास, बट यहां पर कोई पाथ ही नहीं है, वो एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं हुआ है, तो बेसिकली आई नीड टू टेक द दिस एलिमेंट ओनली, तो मैं इस पे 1 पे मूव कर जाऊंगा, तो 0 0 1।
मैंने इसकी सारी बिट ट्रेवर्स कर ली, अब मैंने इन दोनों का जोर आराम से निकाल सकता हूं, मुझे पता है कितना होगा, दैट इज 110। इसके थ्रू मैंने मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइज कर ली कि मैं 7 के थ्रू अगर मैं 7 जोर 1 करूं तो मेरा 6 आता है, तो 7 के साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मुझे 1 के साथ जोर करना चाहिए, सच दैट आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज 6। करेक्ट। सो अगर मैं एक एक करके, अब मेरे पास n एलिमेंट्स है ना, मैं एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट करे जा रहा हूं। सो जैसे पहले कोई एलिमेंट नहीं था, कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो मैंने केवल 1 इंसर्ट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट आया 2। अब 2 के लिए मैंने क्या करा, या जितने भी एलिमेंट इंसर्ट हुए ना उसमें से चेक करके देख लिया, 2 का 1 के साथ चेक करके देख लिया। बेसिकली क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 की 3 बिट तक क्या होगी, 0 0 1। जब 2 आया, 2 के लिए पहले चेक करा कि कितना मैक्सिमम जोर पॉसिबल है, फिर उसके बाद 2 को मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। तो 2 के लिए इंसर्ट करना था, तो यहां पर बेसिकली 0 पे जाओगे, यहां पर 1, यहां पर 0, फिर इसको इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम 3 आया, तो 3 के लिए पहले चेक करा, जितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट हुए ट्राई में उसमें चेक करा कि किसके साथ मैक्सिमम जोर वैल्यू पॉसिबल है, वो वैल्यू क्या है, एक मैक्स जोर मेंटेन कर लिया। फिर उसका 3 को इसमें इंसर्ट कर दिया। फिर जैसे कोई 7 आया, 7 के लिए चेक करा कौन सा मैक्सिमम पॉसिबल है, क्या वो एग्जिस्टिंग वालों में से ज्यादा हो रहा है, जिसके साथ दी है उसके लिए चेक करते गए। तो अगर n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हो और क्वेरी कर रहे हो साथ साथ, तो जब 9 आता है, जब एकदम लास्ट एलिमेंट आएगा, बेसिकली n-1th एलिमेंट आएगा, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, n-2 एलिमेंट सारे एलिमेंट्स का यूज करके ट्राई में इंसर्ट हो गए होंगे, उनमें से जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल है सबके साथ उठा के मैक्सिमम और एक ही वैल्यू में पता लग जाएगा कि कहां पर जा पा रहे हो इस पाथ के थ्रू। उसमें टाइम कितना लगना है, लॉग ऑफ मैक्स। मैक्स मींस जो भी इसके अंदर मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है वो ले लोगे, एंड कॉरस्पॉन्डिंग n एलिमेंट्स है, तो n लॉग ऑफ मैक्स वैल्यू में तुम अपना ट्राई में इंसर्ट और क्वेरी कर पाओगे। दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस, कि यार बहुत जल्दी काम होता है। करेक्ट, दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस। हम इसीलिए ट्राई को यूज करते हैं फॉर जनरली जोर टाइप की प्रॉब्लम है, बिकॉज ये बाइनरी के थ्रू हम कन्वर्ट कर पाते हैं। अच्छा 1 चाहिए तो मैं 0 वाले मूव करूंगा, अगर 0 चाहिए तो मैं 1 वाले में मूव करूंगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो होती है इनमें हम काफी यूज कर पाते हैं इसको। We will see the code, how will we use the code, how will we code this problem, but concept समझ में आना चाहिए कि try क्यों यूज कर रहे हैं, because to optimizing our result, हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा इससे। ओके, थैंक यू। हाय, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कोड द प्रॉब्लम जोर मैक्सिमम पेयर, है ना। सो हमने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। सो लेट्स गो वन बाय वन एंड कोड के साथ समझते हैं कि एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम को कोड करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक एक बात तो क्लियर थी, हमारे पास एक ट्राई नोड थी, है ना। ट्राई नोड के पास 2 ऑप्शन थी, आइदर 0 के थ्रू लेफ्ट के थ्रू जाना, एंड 1 है तो राइट के थ्रू जाना, है ना। ऐसे हम कुछ ट्राई में कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो हमें कोई भी ट्राई कंस्ट्रक्ट करनी होगी तो 0 निकालेंगे, बिट निकालेंगे, उसका लास्ट बिट निकालेंगे। अगर 0 होगा तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, अगर 1 होगा तो राइट की तरफ मूव करेंगे, है ना। ऐसी कुछ था। तो वी विल हैव अ ट्राई नोड, जैसे ट्री में सब लोग पढ़ते हैं आई थिंक, एंड उसके पास कुछ नहीं होगा, वो आई थिंक कुछ स्टोर नहीं करेगा, इट विल जस्ट स्टोर 2 एड्रेसेस, ट्राई नोड स्टार लेफ्ट एंड ट्राई नोड स्टार। बस 2 चीजों का एड्रेस रखेगा कि मेरे पास लेफ्ट है या राइट है, या मेरे पास लेफ्ट है या नहीं है, बस ये चीजें स्टोर करेगा, है ना। इट इज जस्ट अ पॉइंट, एंड हमें किसी भी नोड से लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो हम उसकी बिट निकालेंगे उस पॉइंट पे। अगर 0 होगी तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, अगर 1 होगी तो राइट की तरफ मूव करेंगे। ऐसे हम अपना ट्राई कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। ग्रेट, ओके। हमारे पास 2 फंक्शन होंगे बेसिकली, इंसर्ट इन अ ट्राई और आइदर क्वेरी फ्रॉम अ ट्राई, है ना। सो हमारे पास एक इंसर्ट करना होगा। अगर इंसर्ट करना है तो हमें किस वैल्यू को इंसर्ट करना है, लेट्स टेक दैट वैल्यू, एंड हमें किस में इंसर्ट करना है, ट्राई में इंसर्ट करना है। तो ट्राई के लिए हमारे पास उसका हेड होना चाहिए और आई थिंक या रूट होना चाहिए, वो हमारे पास अगर होगा तो हम एक ट्राई में इंसर्ट कर पाएंगे, है ना। ये चीजें चाहिए होती है। सिमिलरली वी वांट अनदर थिंग,
कि मैं फाइंड मैक्स XOR पेयर एक फंक्शन होगा, मैं ये क्वेरी कर पाऊँ, मेरे पास एक ट्राई नोड का हेड आ रहा होगा जिसपे मेरा पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा, मेरे पास एक एरे आ रहा होगा जिसके अंदर मुझे मैक्स XOR पेयर निकालना होगा, एंड मेरे पास एक इंटीजर n होगा उस एरे का साइज। करेक्ट। ये फंक्शन क्या करता होगा, इस एरे के कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राई में जो जिसमें सब कुछ इंसर्ट हो चुका है, मैक्सिमम XOR पेयर कौन सा है ये मुझे बता देगा। तो पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम है पहले ट्राई में सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर देना। जब सारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाते हैं तो हम एक एक करके हर एक एलिमेंट पे जाएंगे एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्राई में मैक्सिमम पेयर पड़ा है, मैक्सिमम XOR पेयर है उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वो चेक करेंगे, क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैक्स XOR पेयर से बड़ा है तो मैक्स XOR पेयर को अपडेट कर देंगे। तो देखेंगे कोड करते करते समझ में आ जाएगा, बट हमारा ओवरऑल टास्क यही है, पहले इंसर्ट करना, उसके बाद अपना रिजल्ट निकालना। करेक्ट। तो सबसे पहले सोचते हैं इंसर्ट करने में करना क्या होगा। इंसर्ट करने में करना क्या होगा, कोई एक वैल्यू आई है एंड वो एक हेड दे रहा है हमारे को। ओके, सो हमारे पास मान लो ये ट्री में कुछ कुछ कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ऐसा कुछ ट्री बन चुका है। तो दिस इज एक्चुअली हमारे पास बिट्स कितनी होती है इंटीजर के लिए, 32 बिट्स का होता है। तो हमारे पास 31 से लेकर हमें 0 तक हर एक बिट के लिए जा रहा होगा। जैसे हमारा ट्री हमने कल 0 0 0 बेसिकली 3 बिट वाला बनाया था, हम इसमें कुछ ना कुछ 31 बिट्स के लिए ट्री बना रहे होंगे। तो 31 बिट अगर 0 है तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, 31 बिट अगर 1 है तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। फिर 38 बिट जो भी इनमें से है, 38 बिट अगर 0 है तो इधर की साइड, 38 बिट अगर 1 है तो इधर की साइड, 38 बिट अगर 0 है तो इधर की साइड, 38 बिट अगर 1 है तो इधर की साइड। एज सुन एज हम इसके थ्रू अगर एक एक करके हम नीचे जा रहे होंगे तो हम एक्चुअली 32 बिट्स के लिए ट्रेवल कर रहे होंगे एंड उस कॉरस्पॉन्डिंग बिट को निकालना है। उस करंट कॉरस्पॉन्डिंग बिट पे देखेंगे कि क्या, जैसे तुम यहां पर खड़े हो, तुम ये देखोगे कि यहां पर 0 मान लो कोई आया 29 बिट, ऐसा कुछ इंसर्ट हो चुका है, 0 0 दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0। यहां पर खड़े थे तुमने 31 बिट चेक कर ली, यहां मूव कर गए 1 है, 30th बिट चेक करी 0 है, यहां मूव कर गए। अब तुमने चेक करी 29 बिट, वो है आपकी जो करंट एलिमेंट में इंसर्ट करनी है, उसकी 29 बिट 1 है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई नोड ही में नहीं बनी हुई। तो तुम क्या करोगे, यहां पर एक नोड बना दोगे कि यार ये एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो क्योंकि यहाँ 1 है तो मैंने ये एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। फिर नीचे जाओगे 28 बिट चेक करोगे, यार 0 है, यहाँ इंसर्ट कर दे। तो जैसे जैसे एलिमेंट आ रहा होगा वैसे वैसे तुम्हारा ट्री बढ़ता चला जाएगा, फिर ये 0 के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा, ऐसे कर करके ये 0 तक बन जाएगा। तो ऐसे ये 32 बिट्स के लिए तुम एक एक करके ट्रैवल कर रहे होंगे फॉर इंसर्शन। ओके, सो पहले इंसर्शन देखते हैं फटाफट से। इंसर्शन में हमें क्या करना है, हमें आई थिंक 31 बिट से लेकर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस 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 सारी बिट्स के लिए ट्रैवल करना है। एंड एक काम करते हैं, हेड पे नहीं ट्रैवल्स करते, एक करंट रख लेते हैं कि अभी हमारा करंट कहाँ पर है। करंट शुरू में हमारा हेड होगा, जैसे हम ट्री में ट्रैवल्स करते हैं। ओके, अब मुझे उसकी 31 बिट चेक करनी है, 1 है या 0 है ना। तो उसकी बिट निकालूंगा मैं, एंड बिट इज इक्वल टू व्हाट, मैं उसकी बिट निकालूंगा कैसे, n को मैं राइट शिफ्ट करूंगा i टाइम्स, राइट शिफ्ट करने के बाद i टाइम्स, इतनी बारी मैंने शिफ्ट करा एंड उसका एंड कर दिया 1 से, तब जाके उसकी जो वैल्यू बन रही है बेसिकली, तब जाके जो उसकी वैल्यू बन रही है, सॉरी मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा 31 टाइम्स और उसकी मैंने लास्ट वाली बिट से 1 से एंड करके देख लिया, तो मुझे पता लग गया 31 बिट क्या है उसकी। अगर वो मेरी 0 है, 0 नहीं होगी तो मेरी 1 होगी। मैंने उसकी 31 बिट चेक करी, 30th बिट चेक करी, ऐसे मैं एक एक करके कितनी क्या कर रहा हूं, इतनी बारी लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं, मुझे वाली बिट पता लग जाती है कि कौन सी है। कैसे, एंड करने के बाद अगर 1 होगी तो बी के अंदर वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज 0 आएगी। मुझे हर एक बिट पता लगने लग गई। अब मेरे को हर एक बिट पे पता लग गया, अगर वो 0 है, अगर उसकी 31 बिट या 30th बिट जो भी है 0 है, तो मैं जो मेरा करंट था, जहां पर मैं करंट खड़ा था, उसके मैं लेफ्ट पे चेक करूंगा क्या उसका लेफ्ट नल नहीं, नल है या नहीं। अगर नल नहीं है तो बेसिकली करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट करना है, मेरे को लेफ्ट की तरफ मूव कर जाना है इधर से इधर। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तब मुझे क्या करना है, मुझे उसके लेफ्ट में एक नई नोड इंसर्ट करनी है ऐसे, एंड ये मुझे हमेशा करना है करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट। एक एक करके मैं नीचे जा रहा हूं। अगर मेरा ऑलरेडी उस नोड से लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं क्या करता हूँ, एक नई नोड बना देता हूँ, अदरवाइज लेफ्ट की तरफ ही मूव कर जाता हूँ। तो लेफ्ट की तरफ मुझे हमेशा मूव करना है, अगर नहीं होती लेफ्ट तो बना के फिर मैं मूव करता हूँ।
सिमिलरली फॉर होल्ड्स फॉर राइट, अगर इक्वल टू 1 है तो मेरे को उसमें चेक करना है क्या उसका राइट एग्जिस्ट करता है क्या करंट का। अगर नहीं करता तो मैंने क्या करा, न्यू ट्राई नोड इंसर्ट करी एंड करंट, एंड ये स्टेप हमेशा करना है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट। दिस इज हाउ आई एम मूविंग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे मूव करे जा रहा हूं एक एक बिट के थ्रू। जो सी बिट है ऐसे कर करके मेरे कॉरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट इंसर्ट होता रहेगा। करेक्ट, मैंने करंट को यूज कर करके करंट अपने आप मूव करता रहेगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 31 बिट्स के लिए। जैसे जैसे कोई नंबर इंसर्ट हो रहा है तो 31 बिट्स के लिए ये मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द करंट। करंट अपने आप ट्रेवर्स करता रहता है, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, राइट एग्जिस्ट करता है तो राइट की तरफ मूव कर जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मेरी करंट बिट जो है वो 0 है या 1 है। करेक्ट। आई थिंक इंसर्ट फंक्शन तो बहुत सिंपल है, इंसर्ट फंक्शन जनरली ये यूज होगा, है ना, हर जगह कॉरस्पॉन्डिंगली ये यूज हो रहा होगा। तो आई थिंक लेफ्ट और राइट के लॉजिक से आई थिंक काफी क्लियर होगा, ट्रीज वीज अगर काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, नाउ दिस इज द मेन कंसेप्ट वी नीड टू डू। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम ज़ोर पे निकालने के एरे के अंदर। ठीक है, हमारे पास एक एरे है, ओके, मैं हर एक के एरे के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जाऊंगा एंड उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब मैंने इंसर्ट कर चुका हूं मुझ उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जोन सा भी ज़ोर पेयर मैक्सिमम बन रहा है मैं वो चेक करूंगा, और एक मैं मेंटेन कर लूंगा अभी तक का मैक्स अंडरस्कोर ज़ोर, जो शुरू में क्या होगा, आई थिंक इंट अंडरस्कोर मिनिमम होगा। शुरू के लिए मैंने मिनिमम ले लिया एंड आखिरी में आई थिंक मुझे रिटर्न करना होगा मैक्स अंडरस्कोर ज़ोर ही। करेक्ट, ये करना है मुझे। अब मेरे को हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पेयर निकालने की कोशिश करनी है ट्राई में, कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्राई में मैक्सिमम पेयर कौन सा एग्जिस्ट करता है। तो हाउ विल आई डू, जैसे हमने सोचा था कि यार अगर मेरी जो बिट है अगर वो 101 है ऐसा कुछ है, तो मैं उसकी जो ये थर्ड बिट है ना, ये जो उसकी थर्ड बिट है, इसकी थर्ड बिट के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करूंगा यार 0 है क्या, बिकॉज मुझे मैक्सिमम ज़ोर पेयर बनाना है। बेसिकली 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 0 है तो यहाँ पर मेरे को 1 चाहिए, अगर यहाँ 0 है तो मैं 1 के लिए सर्च करूंगा सच दैट ये कॉरस्पॉन्डिंग इनका ज़ोर करके 1 बने। फिर यहाँ पर अगर 0 मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, ये 1 बनेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कहूंगा मेरा 7 सबसे बढ़िया पेयर बन पा रहा है। मैक्सिमम ज़ोर जो आ रहा है पेयर नहीं, जो मैक्सिमम ज़ोर बन पा रहा है 2 पेयर का, तो मैं ऐसा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 एग्जिस्ट नहीं करता होगा, मतलब बेसिकली तुम ऐसे ट्री पर हो, यहाँ पर तो 1 चले गया, यहाँ पर 0 चले गया, तुम्हें नेक्स्ट टाइम 1 चाहिए था, लेकिन तुम्हारी नोड ही ऐसी बनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है ही नहीं, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें यहीं के साइड मूव करना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन होगा तो तुम अपने कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग मूव करोगे, चेक करोगे कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग नोड है क्या, अगर है तो उधर की साइड मूव कर जाओगे, अगर नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं के साइड मूव करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू। ओके, सो कोड करते करते समझते हैं कैसे होगा, आ जाएगा समझ। ओके, सो मैं हर एक वैल्यू के लिए चेक कर रहा हूं एंड हमेशा स्टार्ट किससे कर रहा हूं, मैं हमेशा एक करंट रख लूंगा जो हमेशा एक हर वैल्यू के लिए, जो मेरा ट्राई नोड है बेसिकली ट्राई के हर एक के लिए मैं हेड से स्टार्ट करूंगा। ग्रेट, एंड मैं क्या करूंगा 31 बिट से लेकर 0 तक हर एक वैल्यू के लिए चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा, बिट निकालने की कोशिश करूंगा, जैसे उस पर निकाली थी इंट बी इज इक्वल टू व्हाट, मुझे वैल्यू का करना है। सो लेट्स मेंटेन अ वैल्यू, जो मेरे वैल्यू होगी में जो करंट वैल्यू है वो है एरे एट ith। सो मैं वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा j टाइम्स और उसकी करंट बिट क्या है वो निकालने की कोशिश करूंगा अकॉर्डिंग टू दैट। ऐसे मैं मेंटेन कर रहा हूं और मेरे को एक वैल्यू भी मेंटेन करनी पड़ेगी, बेसिकली हमें तो मैक्स ज़ोर की वैल्यू बतानी है ना। सो मेरी वैल्यू शुरू में, अभी मैंने कोई पेयर नहीं लिया है तो करंट अंडरस्कोर ज़ोर इज इक्वल टू 0 रहेगा, कि मैंने अभी कोई वैल्यू नहीं ली है। बेसिकली मेरे को एक करके मैं ज़ोर की वैल्यू बनाते रहूंगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 चाहिए, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एडिशन नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 1 चाहिए बेसिकली। करेक्ट, ग्रेट। सो मेरी जो करंट बिट है वो क्या होगी, 2 चीजें हो सकती हैं। जो मेरी वैल्यू है उसकी जो करंट बिट है, करंट बिट मतलब ith jth बिट, वो अगर 0 है तो मैं चाहता हूं मैं 1 की साइड मूव करूं, अदरवाइज मैं 0 की साइड मूव करना चाहता हूं। तो अगर मेरी करंट बिट 0 है तो मैं राइट की तरफ मूव करना चाहता हूं, बट हाउ वुड आई मूव, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि करंट का राइट एग्जिस्ट करता है क्या।
अगर करंट का राइट एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली बहुत बढ़िया है, करंट को इज इक्वल टू करंट डॉट राइट मूव करवा दो। अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई ऑप्शन नहीं है, करंट को करंट डॉट लेफ्ट ही मूव करवाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है बेसिकली। दिस इज हाउ आई एम गोइंग ऑन, करेक्ट, कोई और ऑप्शन नहीं है, करंट को करंट डॉट लेफ्ट ही मूव करवाना पड़ेगा। ग्रेट। नाउ अगर मेरी करंट बिट 1 के बराबर है तो मैं चेक करूंगा क्या करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट की साइड मूव कर जाओ, बेसिकली 0th बिट की तरफ मूव कर जाओ। अदरवाइज करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट ही मूव करना पड़ेगा। बेसिकली कोई ना कोई पाथ तो एग्जिस्ट करेगा, सेम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ना। बेसिकली जो तुमने वैल्यू इंसर्ट करी है कभी भी करंट नल पे नहीं पहुंचेगा 31 बिट्स के लिए, बिकॉज क्यों, बिकॉज जो तुमने वैल्यू इंसर्ट करी है वो खुद भी तो इंसर्ट करी है ना, तो कहीं ना कहीं तुम खुद की वैल्यू पे तो ट्रेवर्स कर ही रहे होंगे बस केस में, है ना। तो ये अपने आप कोड एकदम सही चलेगा, ठीक है। सो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि करंट नल ना पहुंच जाए, क्यों, क्योंकि तुम खुद भी तो इंसर्ट हो, तो ज्यादा क्या होगा, तुम अपने पाथ भी ट्रेवर्स करते रहोगे, ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी जोर की 0 रहेगी, बस उसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेट। ना एक बात, वन मोर थिंग, तुम्हारी ये जो करंट जोर की वैल्यू थी इसको इंक्रीमेंट कब करना है, बेसिकली वैल्यू कैसे बनेगी। अगर करंट बिट 1 बनी है तो तुम्हारी कोई ना कोई पावर ऐड हुई है ना, बेसिकली क्या हुआ है 2 to the power 31 into 1 प्लस 2 to the power 30 into 0, ऐसे कुछ एडिशन होता है ना बाइनरी में। तो मेरे को तो ये पता है कौन सी बिट है करंट बिट, कैसे, jth बिट। सो अगर 2 to the power 31 करना है तो पावर ले लूंगा 2 की 31 से, पावर ले लूंगा 2 की 32 से, तो इतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, बेसिकली अगर b इज इक्वल टू 0 है तो मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मैं 1 की तरफ मूव कर रहा हूं, बेसिकली मेरा मेन एम है 1 बनाना। सो मेरी जो करंट जोर की वैल्यू है उसमें एडिशन तभी होना है जब 1 बन रहा हूं, 1 तब बनेगा जब मैं अच्छे से अच्छा इंसर्ट कर रहा हूं। बेसिकली इस वैल्यू में इंसर्शन क्या होगा, पावर ऑफ 2 टू दी पावर 31 into 1, 2 to the power 32 into 2 to the power 29 into 1, जो सी बिट सेट हो रही है बेसिकली 1 हो रही है ना। अगर तुम 1 थे तो उसको 0 बना रहे हो तो तुम्हारी जोर वैल्यू 1 हो रही है, तो बेसिकली तुम्हें तभी ऐड करना है, यहां पर एडिशन करना है एंड इसी वैल्यू को यहां पर एडिशन करना है। जब करंट वैल्यू जो तुम्हारी थी उसकी करंट बिट 1 थी तो तुमने चुना 0 वाला पाथ, तो बेसिकली जोर वाली वैल्यू तो 1 बनी ना, तो उसी वाली वैल्यू में तुमने पावर ऐड कर दी। जब ये काम खत्म हो जाएगा तुम्हारी करंट जोर में सबसे बढ़िया वैल्यू बन के आई होगी जोर की, उस वैल्यू को चेक करोगे, क्या मेरा करंट जोर मेरे मैक्स जोर से बड़ा है क्या। अगर है तो तुम्हारा सिंपल सा काम है कि मैक्स जोर को तुम करंट जोर बना दोगे। तुम हर एक वैल्यू के लिए जाके करंट जोर निकालने की कोशिश करते हो कि तुम्हारा की कॉरस्पॉन्डिंग पेयर की कॉरस्पॉन्डिंग सबसे बढ़िया करंट जोर क्या बन सकता है। अगर वो ओवरऑल मैक्स जोर से बड़ा होता है तो मैक्स जोर के अंदर करंट जोर डाल देते हो, हर एक एलिमेंट के लिए जाते हो, हर एक का करंट जोर मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हो, ओवरऑल जो मैक्स जोर होता है उसको रिटर्न कर देते हो। दिस इज हाउ यू आर ट्रैवर्सिंग थ्रू द ट्राई। कैसे ट्राई में ट्रैवर्स करना है वो समझ में आ गया, हर एक एलिमेंट पे जा जाके हम ट्रैवर्स कर करके वैल्यू निकाले जा रहे हैं, आई थिंक ये भी समझ में आ गया। लेट्स ट्राई वन एग्जांपल। सो एक काम करते हैं, कैरे ले लेते हैं 6 साइज का, 8, 12, लेट्स मेंटेन 1, 2, 15, 3, 10। Let's maintain 5 also for correcting the values. This is a good example. So maximum ZOR I think 10,5 का होगा because 10 is what 1010 and 5 is what 0101. So चारों दोनों का ZOR कर दो तो 1111, तो that is maximum value is 15। सारे 4 बिट के नंबर्स हैं तो मैक्सिमम वैल्यू तो 4 बिट की कर सकते हैं 15 ही, तो आई थिंक मैक्सिमम ZOR वैल्यू 15 आएगी, है ना। सो अगर हम इस एग्जांपल को ले तो 10,5 का जोर करें तो आई थिंक 15 वैल्यू बनती है एंड दैट इज द मैक्सिमम जोर वैल्यू यू कैन गेट। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले सारे एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। सो हमारे को एक ट्राइनोड स्टार हेड मेंटेन करना पड़ेगा शुरू में, जो एकदम ऊपर वाला होगा, इक्वल टू न्यू ट्राइनोड एंड एक एक करके i लेस देन 6, i प्लस प्लस, किस में इंसर्ट करना है, दिस इज माई इंसर्ट फंक्शन, किस वैल्यू को इंसर्ट करना है, एरे एट ith को इंसर्ट कर दो, किस में, इस ट्राई में, बेसिकली इस हेड में। एंड एक काम करो मेरे लिए इसके बाद
फाइंड मैक्सिमम जॉर पेयर करके ले आना। उसमें क्या क्या देना है मुझे, हेड देना है, एरे देना है, हेड देना है, एरे देना है, एरे का साइज देना है। दिस इज हाउ आई एम प्रिंटिंग दिस वैल्यू। आई नो द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज 15। 1 सेकेंड जस्ट। सो हमने इसके बाद एक सेमीकोलन नहीं डाला। सो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको पब्लिक भी बना देते हैं अभी के लिए। ओके, सो 15 आ रही है वैल्यू, एकदम सही आ रही है, मस्त। सो इफ यू विल सी आंसर इज कमिंग आउट टू 15। हमने कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में कर लिया क्वेश्चन, n log of maximum element, log of maximum element is 15। so log n मतलब बेसिकली 6 log 15, इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। सो बहुत ही सही अप्रोच थी बिल्कुल। अगर ट्राइज और ये बाइनरी ट्रीज वगैरह क्लियर है तो ये कंसेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। हमने बाइनरी के थ्रू यूज करके ट्राई का कंसेप्ट लगा के प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लिया। तो जनरली जो जॉर वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी तुम और करोगे, उनमें हम ये कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो और करेंगे प्रॉब्लम्स, और समझ में आएगा, मजा आना चाहिए। ओके, थैंक यू। Hi, so in this session we are going to discuss the problem max subarray XOR. है ना? So what's the problem? Problem is you are given an array. Let's name it 1, 8, 2, 5, 7, 6. So you need to tell me what is the maximum XOR of any subarray possible. So subarray क्या होता है? Continuous elements starting from any index. So if I am starting from this index, this is a subarray. This is a subarray, this is a subarray. Similarly, if I am starting from this index, this is a subarray, this is a subarray, this is a subarray. So starting from any index, continuous elements. So there are total many subarrays in the for a given array. Okay, you need to tell me if I take of XOR of like this subarray, what is the maximum XOR possible of any subarray? Maximum XOR possible of any subarray. So I can take, if I am taking this subarray, XOR of these two elements. If I am taking this array, so XOR of these elements, 8, 2, 5, 7, 6. This can be one XOR. So XOR of any subarray, what is the maximum XOR possible of any subarray for a given array? Okay, you need to tell me that value. You need to tell me that value. So there is a simple logic behind that. Take the XOR of every possible subarray. First take this XOR, then 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 take this XOR. Similarly, then start from there, XOR of all continuous elements. Whatever be the maximum possible XOR, you need to tell, you can calculate that value, and that will take around order of n square time, which is not allowed. Okay, so इससे नहीं करेंगे हमने XOR की एक टेक्निक पढ़ी थी ट्राई के थ्रू, वैसे कुछ सोचने की कोशिश करेंगे। So क्या कर सकते हैं हम लोग, like there is this subarray ना, 1, 8, 2, 5. Let's take 4 as subarray. Okay, if I know, if I had stored XOR of this subarray in my try, okay, so मैंने इसका जो भी XOR है वो मैंने ट्राई में स्टोर कर दिया। आई थिंक 1 ही होगा इसका, तो मैंने एक 1 स्टोर कर लिया। सो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ नोट के कॉरस्पॉन्डिंग स्टोर कर लिया। देन आई टेकन XOR ऑफ दिस 1, 8. दिस इज 1 पॉसिबल subarray। इसका मेरे को XOR पता है, इसका मैं XOR कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज 1 का XOR पता है। तो 1, 8 का XOR के लिए क्या करना है, जो भी इसका XOR था 1 का, उसका XOR करना है 8 के साथ, तो 1 और 8 का XOR आ जाएगा। ओके, सो 1 और 8 को कोशिश करके, जब 8 इंक्लूडेड सबैरे बन रहे हैं, कौन कौन से पॉसिबल है, 8 और 1, 8 अभी के लिए, है ना। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट XOR विद व्हाटएवर यू हैव इंसर्टेड। सो तुमने अभी केवल 1 वाले सबैरे का XOR इंसर्ट करा था ना ट्राई में, तुम क्या कर सकते हो, अगर 1 और 8 के सबैरे का XOR 1 के साथ करोगे तो बेसिकली तुम्हारा 8 का XOR आ जाएगा। दिस कैन बी पॉसिबल 1 सबैरे, है ना। सो 1, 8 का जब तुमने XOR ले लिया, उसका दोबारा XOR कर दो जो भी तुमने अभी तक इंसर्ट करा है। अभी 1 तक इंसर्ट करा है तो तुम्हारे पास 8 का XOR आ जाएगा। कैलकुलेट दिस वैल्यू and you can calculate this value and you can see whatever be the maximum possible. Now let's consider 2. So 2 से एंड होने वाले सबैरे कौन कौन से हो सकते हैं,
282 and 182. Now if you know the XOR value of 18, how to calculate the XOR with of 182? So it's just you need to XOR with 2. So you will calculate, you will have this subarray XOR. Now in the previous try solution, what you had inserted is 1 का XOR, 1 और 8 का जो भी XOR की वैल्यू थी उसको भी इंसर्ट कर दिया था, बेसिकली समथिंग लाइक दिस. नाउ तुम्हारे पास ट्राई में क्या क्या है, 1 का XOR है, 1 8 का XOR है. नाउ 182 का अगर तुम 1 के साथ XOR लोगे तो तुम्हारे पास 82 का XOR आ जाएगा. सिमिलरली 182 के बाद अगर तुम इसका XOR लोगे 18 के साथ तो तुम्हारे पास 2 का XOR आ जाएगा. सो 2 से एंड होने वाला मैक्सिमम XOR पॉसिबल कितना है, यू जस्ट नीड टू टेक, क्या करना है तुम्हारे को, 182 की XOR की जो भी वैल्यू है उसको किसी तरह मैक्सिमम पाथ के थ्रू फॉलो करना है, जैसे हमने पेयर के थ्रू बनाया था कि किसको इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करें, 1 को सिलेक्ट करें या 18 को सिलेक्ट करें, किसके साथ इसका XOR करें सच दैट 182 का मैक्सिमम XOR बन पाए. सिमिलरली जब 5 आएगा, 5 से एंड होने वाले सबेरे कौन कौन से पॉसिबल है, वी जस्ट नीड टू रियलाइज कौन कौन से हैं, 1825, 825 एंड 25 एंड 5. तुम्हारे ट्राई में क्या क्या स्टोर्ड है, तुम्हारे ट्राई में स्टोर्ड है 1 का XOR, 1 और 8 का XOR, 182 का XOR. तुम्हें क्या करना है, 1825 का XOR मैं इनमें से किससे करूं सच दैट मैक्सिमम XOR बने. अगर 1 के साथ करता हूं तो 825 का XOR आ जाएगा, अगर मैं 18 के साथ करता हूं तो 25 का XOR आ जाएगा, अगर 5 के साथ करता हूं तो सॉरी 182 के साथ करता हूं तो मेरा 5 का XOR आ जाएगा. इसके कॉर्रेस्पॉन्डिंग जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं अपने आप से रिटर्न करा दूंगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, एंड वो चेक कर लूंगा कि करंट मैक्सिमम से बड़ी है या नहीं है. एक मैं मैक्स XOR मेंटेन कर लूंगा, मैक्स XOR तो मैं मेंटेन कर ही लूंगा, एक मैं मेंटेन कर लूंगा कि मैं जो इसका कंप्यूट करे जा रहा हूं, पहले 1 के साथ XOR करा, फिर 18 का XOR, फिर 182 का XOR. अब जब 1825 आया, मान लो यहाँ 7 होता तो इसका एक XOR की वैल्यू होती, इसका मैं 7 के साथ XOR करता, इसको मैं ट्राई में इंसर्ट कर देता, क्या करता 18257 का XOR ये है. सो नेक्स्ट टाइम जब कोई एलिमेंट आता 8, सो 8 को इंक्लूड करके जितने भी पॉसिबल सब एरे हैं सबका तुम्हारे पास XOR स्टोर्ड है. तो 18257 का XOR करते हैं 1 के साथ तो 82578 का XOR मिल जाता, 18257 का XOR करते 18 के साथ तो 2578 का XOR मिल जाता. तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग किसी एलिमेंट को जैसी कोई आ रहा है उससे एंड होने वाले जितने जितने सब एरे हैं वो तुम कंप्यूट करे जा रहे हो और अपना मैक्सिमम XOR निकाले जा रहे हो. सो टोटल तुम्हारे को क्या करना है, बेसिकली तुम्हारे को करना केवल ये है, एक एक करके हर एक इंडेक्स पे जाना है और तुम्हें क्या कर देना है, ट्राई में ना पहले 1 का XOR स्टोर कर दो, फिर उसके बाद 8 का XOR 1 का XOR की जो भी वैल्यू है उसको स्टोर कर दो ट्राई में, फिर उसके बाद 182 की जो XOR की वैल्यू है उसको स्टोर कर दो, समथिंग लाइक दिस जो भी होती है ट्राई में. फिर जब 1825 आए, जब भी कोई एलिमेंट आ रहा है उसको क्या करना है, तुम्हें क्या चेक करना है, यार मैं इस 5 को इंक्लूड करने के बाद कैसे पाथ फॉलो करूं सच दैट मैक्सिमम XOR बनते जाए. तो हमारे पास 1 का स्टोर्ड है, सो 1 का है, 18 का है, 182 का है, इन तीनों में से इन तीनों का XOR स्टोर्ड है, इन तीनों के XOR में से कैसे पाथ फॉलो करूं सच दैट 5 को एंड होने वाला मैक्सिमम XOR बन पाए, एंड एक ओवरऑल मैक्सिमम XOR होगा, उसको चेक करोगे क्या ये मैक्स XOR से बड़ा है छोटा है क्या, तो उसको अपडेट कर दोगे, अदरवाइज अपडेट नहीं करोगे. तो जो भी नया एलिमेंट आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो XOR की वैल्यू है उसको ट्राई में इंसर्ट कर देते हो, फिर जब दूसरा एलिमेंट आता है उसको इंक्लूड करने के बाद एक एक करके 1 के साथ, फिर 182 18 के साथ, 1825 ऐसे पाथ फॉलो करते हो ट्राई में, जैसे हमने मैक्स और पेयर में करा था वैसे ही पाथ फॉलो करते हो और कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम XOR निकालने की कोशिश करते हो. उसके मैक्स XOR की वैल्यू फिर ओवरऑल मैक्स XOR से कंपेयर करते हो, अगर वैल्यू ज्यादा होती है तो अपडेट कर देते हो, अदरवाइज अपडेट नहीं करते हो. दैट इज हाउ यू नीड टू फॉलो. आई थिंक सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग से इसको करना होगा. आई थिंक कोड हो जाएगा, यू शुड ट्राई योरसेल्फ, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. ओके, थैंक यू.
Hi. So in this session we are going to discuss the problem सब array का XOR less than k. ठीक है. So problem क्या है? Problem is against the same similar type as you have done before. You are given an array. You will be given a k, a number, and जितने भी सब arrays के XOR possible हैं, as we discussed in the previous question, उनमें से कितनों का k से कम है XOR? That you need to tell me. सब arrays less than k कितने हैं? सब arrays जितनों का सब arrays का XOR less than k है, that you need to tell me. ठीक है. एक टेक्निक तो आई थिंक हमने सीखी ली थी. किसी भी इंडेक्स पे जब हम पहुंचते थे, हमें उस इंडेक्स पे जिस इंडेक्स पे जैसे 4 है, तो 4 से सब एरे लास्ट होने वाले कौन कौन से होते हैं? 4, 3, 4, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4. अगर मुझे इन सबका XOR निकालना होता था तो मैं क्या करता था? ट्राई में 1, 1, 2, 1, 2, 3 के XOR स्टोर कर लेता था. क्या करता था? अब 1, 2, 3, 4 का जो XOR होगा, उसको मैं XOR कर दूंगा अगर 1 से, तो मेरे को 2, 3, 4 का XOR मिल जाएगा. सिमिलरली 1, 2, 3, 4 का अगर मैं XOR कर दूंगा 1, 2 से, तो मेरे को 3, 4 का XOR मिल जाएगा. सिमिलरली अगर मैं 1, 2, 3, 4 का XOR कर दूंगा 1, 2, 3 से, तो मेरे को 4 का XOR मिल जाएगा. ये पार्ट तो आई थिंक क्लियर था. ऐसे हम सबका XOR निकाल सकते थे. नाउ अब हमें इसमें करना है कि जैसे जैसे कोई एलिमेंट आ रहा है उसको इंक्लूड करके जो सब एरेज है, जैसे इसको इंक्लूड करके जिस पे एंड हो रहा है सब एरे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सारे सब एरे निकाल पाते हैं. कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 का XOR लूंगा. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1 के साथ मुझे अलग अलग सब एरेज मिल जाएंगे एंडिंग एट 5. उन सब में से कौन कौन से लेस देन किए हैं मुझे ये काउंट बताना है. ठीक है. सो टेक्निक वही है, जैसे कोई एलिमेंट आए तुमने XOR स्टोर करे हुए ट्राई में, बट जस्ट यू नीड टू रियलाइज तुम्हें इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक लगानी है कि लेस देन के काउंट करने हैं. यू आर गिवन अ नंबर के, थोड़ा सा ट्राई में स्मार्टली मूव करना है एंड यू नीड टू गिव मी द काउंट कि कितने उससे छोटे हैं. ठीक है. सो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स अज्यूम हमारे पास एक ट्राई ऐसा कुछ है. ये तो 0, 1 होता है, ये भी 0, 1 होता है, ये भी 0, 1 होता है. ऐसे कुछ होते हैं ना, 0, 1, 0, ऐसे कुछ ट्राई बना हुआ होता है. तो हमारे पास 0, 1, 1 नेक्स्ट नोड है किसी सब एरे का. ये मेरा वो है 1, 1, 1 किसी सब एरे का XOR है ये. सिमिलरली 1, 0, 0 किसी सब एरे का XOR है. सिमिलरली 1, 1, 0 किसी सब एरे का XOR है. देयर आर डिफरेंट XOR पॉसिबल. नाउ यू नीड टू रियलाइज तुम्हें स्मार्टली कैसे मूव करना है. जैसे तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4, 5 आया, तुम्हारे पास 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 इन सब का XOR स्टोर है ट्राई में. तुमने 5 के थ्रू मूव करा. अब तुम्हें इसकी हर एक बिट पे ढंग से ट्रैवर्स करना पड़ेगा. 5th की करंट बिट क्या है एंड तुम्हारा मान लो k था कुछ 6 था. तुम्हें इससे छोटे नंबर कैलकुलेट करने ना, 5 के साथ सारे सब एरेज का XOR तुम निकाल सकते हो, बट ऐसे मूव करना है सच दैट उनका XOR लेस देन 6 बने. लेस देन 6 बने तो तुम्हें ऐसे कैलकुलेट करने एलिमेंट्स. तो एक बात ध्यान से सोचो कि लेस देन 6 बने, इसको तुम XOR कर रहे हो ना किसी एलिमेंट के साथ, इसकी कुछ बिट्स होंगी 5 की. एग्जांपल क्या है इसकी बिट्स? 0, 0, 1, 0, 1 है. आई थिंक 31 बिट्स तक तुम जा रहे होंगे तो बड़े बड़े नंबर भी आ सकते हैं. 6 की कुछ करंट 6 की कुछ बिट्स होंगी. आई थिंक वो है 0, 0, 1, 1, 0. तुम्हें इससे छोटे सारे नंबर्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो तुम्हें इसकी हर एक बिट पे देखना पड़ेगा. के का जो नंबर है उसकी 31 से लेकर 0 बिट्स है एंड जो मेरा करंट एलिमेंट है उसकी कुछ 31 से लेकर 0 तक बिट्स में एलिमेंट है. ठीक है. सो इसकी बिट्स पे ध्यान देके ट्रैवर्स करना पड़ेगा. तो कहीं पर भी ट्राई पे ध्यान से खड़े हो, तुम्हें 1 की तरफ मूव करना है या 0 की तरफ मूव करना है, ये थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा. बिकॉज तुम्हारे लिए मैटर क्या करता है? ऑल दैट XORs विच आर लेस देन के, है ना. सो ध्यान से सोचो, अगर तुम्हारा ये 1 होता एंड ये भी 1 होता, की भी 31st बिट 1 है एंड जो तुम्हारा एलिमेंट है उसकी भी 31st बिट 1 है, दोनों की दोनों 1 है. अब तुम यहां पर खड़े हो, तुम्हें किधर की साइड मूव करना चाहिए, तुम्हें किसके साथ XOR लेना चाहिए सच दैट तुम्हारे लिए मैटर क्या करे? लेस देन के काउंट हो पाए. सो तुम्हारी जो करंट बिट है वो 1 है. लेट्स नेम इट p. p इक्वल टू 1 है. k की भी करंट बिट 1 है. एक बात तो गारंटी है, अगर तुम यहाँ से राइट मूव कर गए ना, इसके जो भी राइट वाले एलिमेंट्स हैं उसमें तो पक्का सारे एलिमेंट छोटे होने वाले हैं, बिकॉज तुम इसके साथ XOR लोगे
राइट वाले एलिमेंट्स का सबका जो स्टार्टिंग 31 बिट है वो 1 है, इसके साथ जोर लोगे ये 0 बन जाएगा, तो दैट मीन्स ऑल दीज एलिमेंट्स के साथ अगर तुम जोर लोगे तो तुम्हारा 0 होने वाला है, दैट विल बी ऑलवेज बी लेस देन के। तो काउंट ऑफ ऑल लीफ एलिमेंट्स ऑन राइट, ये अगर तुम्हें मिल जाए कि राइट में लीफ एलिमेंट्स कितने हैं, बेसिकली एंडिंग तो नीचे तक है ना, तो काउंट ऑफ ऑल लीफ एलिमेंट्स ऑन राइट अगर तुम्हें मिल जाए, ये तो तुम्हारा आंसर हो ही जाएगा ना। आंसर और क्या हो सकता है, तुम्हारा आंसर हो सकता है, तुम क्या करें, तुमने लेफ्ट की तरफ मूव कर गए तो तुम्हारा 1 और 0 तो 1 बना, लेकिन तुमने लेफ्ट वाले एलिमेंट से भी कह नहीं सकते, बट हाँ राइट वाले एलिमेंट सारे छोटे होंगे, वो तुमने काउंट रख लिया एंड तुम इफेक्टिवली लेफ्ट की तरफ मूव कर गए कि यार जो लेफ्ट से काउंट होएगा उसको मैं और आंसर में ले लूंगा। दिस इज द केस व्हेन योर करंट बिट इज 1 एंड kth की भी वाली बिट 1 थी। दिस इज द कंसेप्ट, यू नीड टू ट्राई। सिमिलरली अगर तुम ध्यान से सोचो, तुम्हारी करंट बिट तो 1 होती एंड kth की करंट बिट जो होती वो 0 हो जाती, 0 थी, तो तुम्हें तो k से छोटे नंबर कैलकुलेट करना है ना। ध्यान से सोचो, तुम्हें एक पार्ट तो पक्का क्लियर है, लेफ्ट की तरफ अगर तुम मूव कर गए तो 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेफ्ट वाले एलिमेंट्स तो सारे बड़े ही होंगे, लेफ्ट की तरफ तो जाने का मतलब ही नहीं है, 1 और 0 1 बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें आराम से बस राइट की तरफ मूव कर जाना चाहिए, मूव टुवर्ड्स राइट ओनली। यू नीड टू कंसीडर दीज केसेस। तुम 31 से लेकर हर एक बिट पे जाए जा रहे हो, kth की बिट देखते हो एंड अपने करंट नंबर की बिट देखते हो, स्मार्टली जोर लेते हो कि यार अगर मैं इसके साथ जोर लूँ तो मैं क्या फायदा हो रहा है मेरे को। अब तुम ध्यान से सोचो एक और केस, अगर P मेरा होता, मेरी करंट बिट होती 0 एंड kth की करंट बिट होती 1, मान लो ये होता, kth की करंट बिट तो 1 हो जाती एंड तुम्हारी बिट होती 0। सो एक बार ध्यान से सोचो, तुम्हारी तो 30 ये है 0 ना, अगर तुम लेफ्ट की तरफ मूव कर गए, ध्यान से सोचो, सारे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स तो छोटे होने वाले हैं ना, बिकॉज 0 और 0 क्या होने वाला है 0, एंड ये वाली बिट अगर 0 हो गई 31 में तो सारे एलिमेंट छोटे होंगे। सो काउंट ऑफ ऑल लीफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट, ये तो पक्का आंसर होने वाला है, काउंट ऑफ ऑल लीफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट तो पक्का छोटे होंगे ना। बराबर कौन से हो सकते हैं, तुम इसकी तरफ राइट की तरफ मूव कर गए, बेसिकली तुम्हारा जोर भी क्या बन गया, 0 और 1 इज 1 बन गया, तो इसमें अब तुम क्या करोगे, राइट की तरफ मूव कर जाओगे, दैट इज हाउ यू नीड टू मूव। ध्यान से अब तुम सोच लो, अगर तुम भी 0 होते एंड के भी 0 होता, राइट की तरफ तो मूव करने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज 0 और 1 क्या बन जाएगा 1, वो सारे एलिमेंट्स तो बड़े ही हो जाएंगे, वहां तो मूव करने का मतलब ही नहीं है, यू जस्ट नीड टू मूव टुवर्ड्स, और कोई चारा नहीं है। 0 और 0 0 बनेगा, उसकी भी करंट बिट 0 है, ठीक है, सही मूव कर जाओगे। चारों केसेस कंसिडर कर लिए, 31 से लेकर 0 बिट्स पे मूव करो एंड स्मार्टली हर एक एलिमेंट के लिए मूव करो। यू जस्ट नीड टू मेक अ स्मॉल चेंज इन द ट्राई, तुम्हें क्या स्टोर करना पड़ेगा, हर एक नोड को पता हो कि उसके अंदर कितने लीफ एलिमेंट्स हैं, कितने उसके पास लीफ एलिमेंट्स है, अगर तुम ये स्टोर कर लोगे तो तुम्हारा आंसर कंप्यूट हो जाएगा। सबको बाइनरी आता है, सबको ट्राइज आता है, सबने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, केवल ट्राई के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दो कि हर एक नोड को पता हो उसके कितने लीफ नोड्स हैं, ये चेंज करोगे, स्मार्टली मूव करोगे, तुम्हारे आंसर कंप्यूट हो जाएगा, जैसे हमने बाकी प्रॉब्लम्स में करा है। ठीक है, दिस इज द मेन कंसेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आई थिंक जोर वाले क्वेश्चंस ट्राइज से करने तो सीख गए। ओके, थैंक यू। So in this session we are going to discuss So in this session we are going to discuss the problem search engine. So problem क्या है basically? Problem is you are given n strings, you will be given n strings and you will be given weight with every strings. ठीक है ना? So तुम्हारे पास strings आ रही हैं n strings and उनके corresponding weight आ रहा है हर एक string के साथ. ठीक है ना? So like ABC आ रहा है with 5 weight, BCD आ रहा है with 6 weight, ऐसे कुछ strings आई जा रही हैं and उसके बाद you will be asking Q queries आएंगी, उसमें क्या होगा
यू विल बी गिवन प्रीफिक्सेस. सो ए बी अगर मैंने पूछा, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे बेस्ट वेट क्या है, इस प्रीफिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनी स्ट्रिंग यू हैव इंसर्टेड जिसका प्रीफिक्स ये हो, उनमें से बेस्ट वेट क्या है. यू नीड टू गिव मी दैट आंसर, है ना. सो जस्ट यू नीड टू मेंटेन, एज यू नो, ऑल स्ट्रिंग्स, जब भी ऐसा स्ट्रिंग का क्वेश्चन होता है, प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन होता है, वी नीड टू इंसर्ट इनटू द ट्राई. हम ट्राई को यूज कर लेते हैं फॉर यूटिलाइजिंग अवर स्पेस. हम सारी स्ट्रिंग्स को ट्राई में इंसर्ट कर देंगे. नाउ व्हेनेवर एनी स्ट्रिंग कम्स ऑफ एनी प्रीफिक्स कम्स, व्हाट इज आस्किंग. सो लाइक एबीसी जब इंसर्ट हुआ होगा तो एबीसी ऐसे कुछ इंसर्ट हुआ होगा, ए बी सी एंड 5 वेट. ओके, वेट का देखेंगे. फिर बीसीडी कुछ ऐसे इंसर्ट हुआ होगा विथ 6 वेट. नाउ ये वेट को कैसे मैनिपुलेट करा जाए. नो, थिंक लाइक दिस. लाइक नाउ एज्यूमिंग ए बी ई बी इंसर्ट हुआ है 5 और ए बी का वेट था 7. इफ आई एम आस्किंग यू विद प्रीफिक्स ए बी मैक्सिमम वेट क्या है, तो मेरा आंसर 7 होना चाहिए. सो ए और बी पे इफ आई एम आस्किंग यू जिसका प्रीफिक्स ए है उसमें मैक्सिमम वेट वाली कौन सा आंसर है, तब भी आंसर 7 होना चाहिए. बट अगर मैं ए बी सी पूछ रहा हूं तो आंसर 5 होना चाहिए. आई थिंक ए बी सी में आंसर 5 होना चाहिए, ए बी में आंसर 7 होना चाहिए, ए में आंसर 7 होना चाहिए एंड ए बी ई में भी आंसर 7 होना चाहिए. तो ऐसे ट्राई में हर एक नोड के पास स्टोर होना चाहिए कि अगर इतना प्रीफिक्स होता तो मेरा मैक्सिमम वेट क्या होता. तो जब इंसर्ट कर रहे हो ना ट्राई में, तो ध्यान से इंसर्ट करना है. बेसिकली एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, ट्राई में क्या होता है, हर नोड के पास चिल्ड्रन होते हैं. अब केवल चिल्ड्रन नहीं होंगे, हर नोड कुछ वेट स्टोर करेगी, एक चीज एक्स्ट्रा स्टोर करेगी, वेट. नाउ जब जब इंसर्शन हो रहा है, जब इंसर्शन हो रहा है, एज इन अभी कोई स्ट्रिंग आ जाती है, मान लो ए बी एफ विद वेट 10, तो यहां पर से पूछोगे ना ए है क्या तेरे पास, हाँ बिल्कुल है. 10 वेट आ रहा है तो डेफिनेटली ए को अब 7 से मतलब नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पर 10 अपडेट कर दोगे उसी टाइम. फिर पूछोगे बी है, बिल्कुल है, तो यहां पर 7 की जगह 10 अपडेट उसी टाइम कर दोगे. फिर उसके बाद एफ आएगा, एफ नहीं है तो एफ की नोड बनाओगे एंड यहां पर 10 इंसर्ट कर दोगे. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क. जैसे जैसे इंसर्ट हो रहे हो तो उसी टाइम चेक करते रहोगे, यार करंट नोड का वेट इस वाले वेट से छोटा है क्या, करंट नोड का वेट इस वाले वेट से छोटा है क्या, तो अपडेट करते रहोगे. फिर डाउन मूव करोगे, फिर डाउन मूव करोगे. तो इंसर्शन नॉर्मल तरीके से करना है, बस साथ साथ वेट का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है. इट्स अ सिंपल ट्राई प्रॉब्लम, ठीक है ना. अब जैसे ही मैं तुमसे पूछता हूं कि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेट क्या है, तो पहले तो उस प्रीफिक्स पे जाना है, पहले तो पूरी प्रीफिक्स कवर करनी है, पूरा ए बी पे जाना है. बेसिकली अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछा था ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, तो तुम ए पे तो पहुंच जाते, लेकिन तुम्हें डी भी चेक करना जरूरी है. तो डी है ही नहीं, तो यू विल हैव टू रिटर्न -1 फॉर दैट. सो अगर कोई स्ट्रिंग नहीं है तो यू हैव टू रिटर्न -1. यू डू नॉट हैव टू रिटर्न ए का वेट. तो पहले प्रीफिक्स पे पूरा पहुंचना जरूरी है. जैसे ही प्रीफिक्स पे पहुंच जाते हो, उसके बाद क्या करना होगा. अब ए बी पे पहुंच गए तो यहां तक का जो भी बेस्ट वेट रहा है इस वाली नोड का, बी पे जो नोड है लास्ट वाले पे जो रुके हो, वहां पर जो वेट रखा है वही तुम्हारा मैक्सिमम आंसर होगा. बिकॉज ए बी एफ, ए बी सी, ए बी ई, ये तीनों स्ट्रिंग में से जो मैक्सिमम वेट है वो बी के पास स्टोर्ड है. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो टू द लास्ट नोड ऑफ द प्रीफिक्स एंड वहां पर जो वेट रखा है उसको रिटर्न करना होगा. सब कुछ सिंपल है, बेसिक ट्राई की प्रॉब्लम है. जस्ट नीड टू मेंटेन वेट एंड इंसर्शन के टाइम थोड़ा वेट का ध्यान रखो. कैसे कि करंट नोड को चेक करते रहो कि उसका वेट कितना है. एंड सिमिलरली जब सर्च कर रहे हो तो पहले पूरे प्रीफिक्स पे पहुंचो, जब प्रीफिक्स पे पहुंच जाओ तो लास्ट नोड पे जो वेट है वही तुम्हारा आंसर है. ओके, अच्छा सिंपल प्रॉब्लम कर लेना इसको. ट्राई अगर इंप्लीमेंटेशन अच्छे से आती है तो ये हो जाएगा. वी विल डिस्कस द कोड इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो तब तक के लिए खुद से एक बारी ट्राई करो. ओके, थैंक यू.
Hi. So in this session we are going to code the problem best search engine. ठीक है. So what's the problem? Problem में हमारे पास था कि हमारे पास different इंसर्शन हो रही होंगी बहुत सारी स्ट्रिंग्स के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग वेट आ रहा होगा, उनको हम ट्राई में इंसर्ट कर रहे होंगे. मैं तुम्हें कोई प्रीफिक्स दूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी बेस्ट वेट पॉसिबल है वो मुझे वेट को प्रिंट करना होगा, है ना. दैट इज अवर प्रॉब्लम. ठीक है, हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया था, कोड करना रह गया था. ठीक है, फटाफट से ट्राई के थ्रू इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, मजा आएगा. ओके चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमें एक ट्राई नोड मेंटेन करनी होगी हर ट्राई नोड में. सो एक ट्राई नोड मेंटेन कर लेने के लिए क्लास ले लेते हैं. ओके, उस क्लास में क्या क्या होगा, लेट्स मेंटेन इट्स पब्लिक मेंबर्स, बिकॉज हम फंक्शन बना रहे होंगे नीचे, तो उसमें पब्लिक मेंबर्स ले लेते हैं. कौन कौन से, एक तो आई थिंक होगा हमारे पास हर नोड के पास चिल्ड्रन एरे होगा 26 साइज का, ट्राई नोड स्टार चिल्ड्रन, ट्राई नोड स्टार चिल्ड्रन, तो ट्राई नोड स्टार चिल्ड्रन बेसिकली, है ना. सो इट विल बी अ एरे ऑफ ट्राई नोड्स. ओके, एंड हर एक नोड के पास उसका खुद का वेट होगा बेसिकली. सो ग्रेट. नाउ हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं. जब भी कोई ट्राई नोड बने, कोई कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं. कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, जब भी कोई ट्राई नोड बने तो उसको एक 26 साइज का ये असाइन हो जाए बेसिकली, 26 साइज का ट्राई नोड का एरे, एंड उसको हम बाय डिफॉल्ट सबको नल से इनिशियलाइज कर देंगे. चिल्ड्रन एट ith पे नल, एंड एज वेल लेट्स अज्यूम सबका वेट बाय डिफॉल्ट में 0 रख देता हूं. ठीक है ना, ये मेरी हर ट्राई नोड की प्रॉपर्टी होगी. जब भी कोई नया ट्राई नोड बनाऊंगा तो उसको एक 26 साइज का चिल्ड्रन एरे मिल जाएगा, एंड उस हर एक चिल्ड्रन एरे पे बाय डिफॉल्ट अभी नल रखा होगा, एंड उस पे मैंने वेट 0 रख दिया होगा. ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन होंगे. एक इंसर्ट फंक्शन होगा जो ट्राई में इंसर्ट करता होगा. ट्राई में इंसर्ट कैसे करता होगा, उसको एक स्ट्रिंग मिलती होगी, उस स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेट मिलता होगा, एंड उस वेट के साथ साथ एक उसको मिलता होगा कि किस ट्राई में इंसर्ट करना है, बेसिकली किस रूट में इंसर्ट करना है. दिस विल बी माय वन फंक्शन. एंड मेरे पास एक बेस्ट, जब मुझे बेस्ट प्रीफिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बेस्ट वेट चाहिए तो मेरे पास एक सर्च बेस्ट फंक्शन होगा. वो क्या करता होगा, एक स्ट्रिंग लेता होगा, एक स्ट्रिंग एस लेता होगा, एंड मुझे बताता होगा यार इस ट्राई में सर्च करके बता दो कि इस स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग बेस्ट वेट क्या पॉसिबल है ना. ये हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इंसर्शन इनटू अ ट्राई. इंसर्शन कैसे करेंगे, सो इंसर्शन कैसे करेंगे, हम रूट पे खड़े हैं अभी. सबसे पहले हम यहां पर ये रूट पे खड़े हैं, रूट से पूछेंगे, मान लो मुझे डू इंसर्ट करना है, तो मैं इससे पूछूंगा क्या तेरे पास डी वाला चिल्ड्रन है या नहीं. लेट्स अज्यूम अभी एबीसी नाम का एक वर्ड इंसर्ट हो चुका है, एंड लेट्स अज्यूम अभी बैग नाम का एक स्ट्रिंग इंसर्ट हो चुकी है. जब मैंने डू के लिए पूछा तो मैं इससे पूछूंगा, ये मेरी रूट होगी, क्या तेरे पास डी का कोई है, नहीं होगा, तो मैं डी के कॉरस्पॉन्डिंग एक नोड बनाऊंगा एंड यहाँ डी इंसर्ट कर दूंगा. एंड मेरे को इसके साथ वेट मिला होगा, वेट मेरे को मान लो 5 मिला है, तो मैं यहाँ पर इस कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट भी 5 बना दूंगा, बिकॉज अभी तक का तो वेट मैक्सिमम 5 पॉसिबल है. सिमिलरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओ नहीं होगा तो मैं ओ इंसर्ट करूंगा, यहाँ पर भी 5 बाय डिफॉल्ट डाल दूंगा. करेक्ट, इतना पार्ट क्लियर है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लेट्स अज्यूम मेरे पास आया बॉल आया नेक्स्ट, एंड मैंने बैक के कॉरस्पॉन्डिंग ना मेरा कुछ 10 वेट था. सो बॉल कॉमा मेरे पास आएगा एक 15, मान लो कोई वेट आ रहा है. सो मैं इससे पूछूंगा बी है, बिल्कुल है, एंड इसका मैं वेट चेक करूंगा, यार ये 10 जो है ना इससे कम है, तो मैं कोई बी की प्रीफिक्स बोलूं तो मेरे को बॉल वाला वेट दियो, मेरे को बैग वाला वेट मत दियो, तो मेरे को उसका वेट भी अपडेट करना होगा, ये 15 बनाना होगा. सिमिलरली अब ए होगा, ए मेरे पास है तो मैं इस पे मूव करूंगा, इसको भी मेरे को 15 बनाना होगा. अब मैं ए से पूछूंगा क्या तेरे पास एल है, एल है ही नहीं, तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एल इंसर्ट करूंगा, एंड इसका बाय डिफॉल्ट वेट तो 15 ही इंसर्ट होगा, है ना. ये पार्ट क्लियर है. फिर इसके बाद यहाँ पर एल नहीं है तो यहाँ पर भी 15 इंसर्ट होगा. ऐसे मैं कुछ इंसर्शन कर रहा हूँ जिससे कि जब मैं बी ए के कॉरस्पॉन्डिंग पूछूं तो मेरे पास हो कि कौन सा वेट मैक्सिमम है, तो दैट विल बी 15. ठीक है ना, सिंपल है. तो ऐसे मैं इंसर्शन कर रहा हूँ. लेट्स डू इट क्विकली. सो हाउ विल आई इंसर्ट, मैं कैसे इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं अभी रूट पे खड़ा हूँ, मेरे को उसके कॉरस्पॉन्डिंग चिल्ड्रन को चेक करना पड़ेगा. चिल्ड्रन को कैसे चेक करूंगा,
जो एसेट 0 है, जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है इसका, उसको चेक करना पड़ेगा रूट के अंदर है या नहीं है। ठीक है, सो मेरे पास बाय डिफॉल्ट अभी ट्राई नॉट स्टार चाइल्ड देखूंगा मैं। ठीक है, मैं चेक करूंगा, मैं पहले इंडेक्स निकालूंगा। इंडेक्स निकाला मैंने एसेट 0 माइनस ए से, स्मॉल कैरेक्टर से, ये मेरे को 0 1 2 3 से लेकर 25 में बता देगा। मेरे को ये इंडेक्स उसमें सर्च करना पड़ेगा। इफ रूट के चिल्ड्रन का जो एरे है उसके इंडेक्स पर यहां पर नल नहीं है अगर, तो मेरे पास एक चाइल्ड होगा बेसिकली, जिसको मैं वैल्यू अभी कुछ नहीं असाइन कर रहा, तो चाइल्ड मेरा बन जाएगा, सिंपल सी बात है, रूट का जो चिल्ड्रन के इंडेक्स पर है वो मेरा चाइल्ड बन जाएगा। अदरवाइज मेरे को चाइल्ड को नया नोड बनाना होगा, न्यू ट्राई नोड, ये मैंने एक नई ट्राई नोड बनाई, एंड रूट के चिल्ड्रन एट इंडेक्स पर इस चाइल्ड को डालना होगा। हो सकता है हो, अदरवाइज हो सकता है ना हो, है ना। ये मैंने काम कर दिया। अब मैंने चाइल्ड इंसर्ट कर दिया। अब मेरे को वेट की बात करनी है, चिल्ड्रन एरे तो मेरे को कहीं ना कहीं मिल गया। अब मुझे वेट की बात करनी है, तो मैं वेट कैसे चेक करूंगा? मेरे पास वेट में ऐसे चेक करूंगा, क्या मेरा जो करंट रूट का वेट है वो छोटा है क्या वेट से? अगर छोटा है तो सिंपल सी बात है, रूट के वेट को ये वाला जो वेट है उससे असाइन कर दो, है ना। अगर छोटा वेट है तो वेट को असाइन कर दो, अदरवाइज चेंज मत करो। अब मेरे पास वेट भी आ गया। नो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास वेट भी आ गया कॉरस्पॉन्डिंग, तो मेरे को क्या करना है? अब मैंने फर्स्ट कैरेक्टर तो यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब मेरे को सबस्ट्रिंग का जो आगे वाला पार्ट है, स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के आगे वाला पार्ट है, एस डॉट सबस्ट्रिंग 1, जो आगे वाला पार्ट है वो किस में इंसर्ट करना है? वेट तो यही होगा। एंड कहाँ इंसर्ट करना है? इस चाइल्ड में इंसर्ट करना है, इस वाले चाइल्ड में इंसर्ट करके लिया कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। इतना काम करा। एंड ये कब तक करना है? जब तक मेरी जो स्ट्रिंग इंसर्ट करनी थी वो एम्प्टी नहीं हो जाती। अगर वो एम्प्टी हो जाती है तो मुझे कुछ नहीं करना, बेसिकली आई जस्ट नीड टू रिटर्न। तो ये मैंने 2 बार लिख दिया। ओके कूल, समझ में आया कैसे इंसर्शन कर रहे हैं? जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही इंसर्शन कर रहे हैं, रिकर्सिवली कर रहे हैं। ओके सो एक एक करके यहाँ पर इंसर्शन हो जाएगी। इंसर्शन तो आई थिंक एकदम समझ में आ गई होगी कैसे चल रही है। नाउ लेट्स एनालाइज सर्च बेस्ट। हमें कोई स्ट्रिंग को सर्च करना है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस्ट वेट निकाल के आ रहा है। ये हमारे पास जो प्रीफिक्स आ रहा है वो एस के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम इटरेटिवली करते हैं। लेट्स ट्राई इटरेटिवली। ओके सो मैंने अगर तुमसे पूछा बी ए की कॉरस्पॉन्डिंग बेस्ट वेट क्या है, तो तुम रूट पर हो। रूट से क्या पूछोगे? क्या तेरे पास बी है? अगर मेरे को कहीं पर भी ऐसा मिल गया, लेट्स अज्यूम मैंने पूछ लिया भी कैट की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, तो यहाँ पर तो सी है ही नहीं, ट्राई में सी इंसर्ट ही नहीं हुआ है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? रिटर्न -1, है ना। यू हैव टू रिटर्न -1 फॉर दैट। तो अगर बी ए मैंने पूछा है तो बी तो है, ठीक है, बी पे पहुंच जाओगे। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या सर्च करना है तुम्हें? ए सर्च करना है। सो ए को पूछोगे क्या ए है? बिल्कुल है। अब आगे नहीं जाओगे, खत्म हो गई काम। इसका जो वेट होगा, जो यहां तक का बेस्ट वेट रहा होगा, वो तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग वेट होगा। तो जितनी प्रीफिक्स दी है उतना डीप में तो जाना ही जाना है, पूरे एंड ऑफ प्रीफिक्स पे तो जाना ही जाना है। जब एंड ऑफ प्रीफिक्स पे पहुंचे हो, वहां पर जो वेट रखा है वो तुम्हारा आंसर होगा। अभी तक का मैक्सिमम बेस्ट वेट वहीं रखा होगा। ओके क्योंकि तुम जब जब इंसर्ट कर रहे थे तब तब अपडेट करे जा रहे थे नोट को बेस्ट वेट से। ओके सो हमारे को क्या करना है? बेसिकली हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को स्ट्रिंग के हर एक इंडेक्स पे ट्रैवर्स करते रहना है। एंड व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे पास अभी करंट नोड कहां पर है? ट्राई नोड स्टार करंट इक्वल टू रूट पर है, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा, इंट इंडेक्स निकालूंगा। इंट इंडेक्स कैसे निकालूंगा? एसेट ith माइनस ए से, ये मैंने इंडेक्स निकाला। ट्राई नोड स्टार चाइल्ड इज इक्वल टू रूट के इस इंडेक्स पर क्या रखा है? अगर चाइल्ड नल नहीं है, अगर चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड नहीं है, तो मेरे को करंट को मूव कर देना है नेक्स्ट पार्ट पे, तो करंट को मुझे चाइल्ड बना देना है। अगर मेरे किसी भी पॉइंट पे चाइल्ड नल आ जाता है, इसका मतलब वो प्रीफिक्स से नहीं है, तो आई जस्ट नीड टू रिटर्न -1 फॉर दैट। आई जस्ट नीड टू रिटर्न -1 फॉर दैट। एंड शुरू में मेरे को एक मेंटेन करना पड़ेगा, इंट बेस्ट वेट
जो बाय डिफॉल्ट आई थिंक आई शुड टेक -1। अब जैसे जैसे मैं प्रीफिक्स से मूव करे जा रहा हूं तो जो जो सा उसका आंसर बने जा रहा है, तो बेस्ट वेट को मैं अपडेट करे जा रहा हूं किससे, चाइल्ड के। दैट इज हाउ आई नीड टू डू। चाइल्ड के वेट से मैं अपडेट करता रहूंगा एंड इन द एंड आई जस्ट नीड टू रिटर्न व्हाट, बेस्ट वेट। I just need to return best weight. Okay. So ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास आ रही होंगी शुरू में n strings एंड मेरे पास q queries हैं। I will take seen n greater n, इतनी queries हैं, इतनी n है। पहले मैं n strings को इनपुट लूंगा, तो for int I is equal to 0 से n तक I प्लस प्लस, I just need to take input string s, पहले string ले रहा हूँ, सीन s कर लिया, फिर उस string का वेट ले रहा हूँ, तो सीन वेट कर लिया। जब मैंने string और वेट ले लिया तो I just need to insert them into a try. So I will maintain a root first, try node star root is equal to new try node. By default ये होगा, मेरे को इस string को insert करना है with this weight in this root. जब मेरी इंसर्शन सारी हो जाएंगी, I need to query for each string. So मेरे पास q queries हैं, मैं different prefixes के लिए queries कर रहा हूँ। So I will take a string prefix, इस prefix के लिए मुझे query करनी है। So I will ask my, उसको मैं print कर दूंगा search best में इस string के लिए in this try. I just need to print that, and after every printing I need to print endl, and I think I am done with this. One small thing, I had made one small mistake. यहाँ पर root नहीं होगा, यहाँ पर current होगा basically, है ना। So हर बारी root से चेक करोगे तो वो पुराने वाला root ही उठाता रहेगा। तो we need to update it with the current. Let's now try to run for the input. If I try to run for 3 inputs, let's name this, and I have 3 strings, ABC with weight 10, ball with weight 15, and bag with weight 5, and I search for BA, I'm coming out with 15, and that is the correct answer. Okay, so I think हमारा कोड सही चल रहा है एकदम। एक थोड़ी सी ब्लंडर मिस्टेक थी, रूट की जगह करंट होगा, बाकी एकदम मस्त चल रहा है। ठीक है, सो हमें ट्राई को यूज करना आ गया। ऐसे ही कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तुम्हें ट्राई में फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। आई थिंक हो जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स। इट्स अ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो दिस एंड कोड फर्दर। ओके।